you're saying. So, and I've given, I think, 5 questions. We'll discuss the questions first. Then we'll move towards the other part. So, question number 1: the unit of conductance cannot be expressed in. See, when it comes to conductance, you got 1 upon R as formula, I upon V as a formula. So obviously, as far as units are concerned, 1, it can be written as mho. Second, it can be Siemens. Third, it can be ampere upon volt, right? And otherwise, it also can be written as ohm inverse. Otherwise, you can write it as 1 upon ohm, right? So many ways by which we can do that. So option A, it's mho. So it is right. Ohm inverse, it is also right. Siemens, it is also right. But ohm per meter, it is not right. And you have to write the wrong one here, right? So this option D, which is not right, but that is the right answer according to the question. Second one, the reciprocal of electrical resistance is. So the reciprocal of electrical resistance, obviously it is going to be conductance. So I would say conductance will be equal to 1 upon resistance. So according to this, it should be option C. Fine. And the third one, a boy records that 4,000 joule of work is done to transfer 10 coulomb of charge between 2 points of a resistor of 50 ohm. The current flowing through it is. So this is very interesting question. Your work done is 4,000 joules and the charge moving is 10 coulomb. And the resistance of that, resistance between these 2 points will be 50 ohm. 50 ohm, right? Now you have to find the value of current. But anybody got answer for this question? Question number 3. किसी को भी आंसर मिला है क्या इसका? इन केस मिला है तो आप बता सकते हो मेरे को. बच्चा, am I audible? आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Sir, 8 ampere मिला आंसर. 8 ampere. Very good, बच्चा. It is 8 ampere. Very true. Because potential is work done upon charge. And current is charge upon time. Then potential is current into resistance. So, ultimately जो दिया है, obviously हम लोग को करंट चाहिए, वर्क डन दिया है, चार्ज दिया, रेसिस्टेंस दिया, तो ऑब्वियसली हम लोग इसका रेफरेंस पे जाएंगे, बिकॉज V को आप रिप्लेस करते हैं W अपॉन Q से, दैट इज इक्वल टू IR है, एंड आपको I चाहिए तो I विल बी इक्वल टू R को वो साइड में लिया तो यू विल हैव W अपॉन Q, ऑफ कोर्स R. सो 4000 अपॉन 10, रेसिस्टेंस इज 50, तो अल्टीमेटली 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो बचता है 40 अपॉन 5, एंड आपको पता है 40 अपॉन 5 तो 8 है, तो आंसर 8 एम्पियर होगा. सो अगेन हियर इट इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. फाइन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्वियसली ग्राफ दिया है, तो देखते हैं ग्राफ से क्या मिलेगा. ओके. The resistance of a conductor whose V against I graph is given below is. So you have to find the resistance. बच्चे ध्यान दो, पहला ये देखो कि ग्राफ किसका दिया है. वोल्टेज अगेंस्ट ऑफ कोर्स करंट है, तो ग्राफ तो ऐसा जा रहा है.
तो एक पर्टिकुलर पॉइंट उनका रेफरेंस पे हम लोग को दिया है, दैट इज जब उसका वोल्ट 9 वोल्ट है तो करंट 20 एम्पियर, 20 एम्पियर। सो इधर 9 है तो ये 20, बाकी इधर 5, 10, 15, 20 ऐसा लिखा होगा। सो इधर 3, 6, 9। तो बाकी सब जगह हमको पता नहीं है, बट इतना तो पता है कि जब वोल्टेज 9 वोल्ट है तो करंट 20 एम्पियर है। तो क्योंकि पॉइंट अब ये लाइन से पास हो रहा है या वो लाइन वो पॉइंट से पास हो रहा है, इट्स वन एंड द सेम। So now how to find the value of resistance? Because it is V against I. So ultimately you can write resistance will be equal to, ultimately it is V upon I. Right? So V 9 है, of course current 20. V 9 है, current 20 है। तो इसका हिसाब से so yes, क्या होगा बच्चा वैल्यू? आंसर मैच नहीं होगा। ओके बच्चा, anybody got the answer here for this question? 3.5 ampere. Sir, option B. It is आपको डिवाइड करना है 3 upon 5, मतलब अप्रोक्सीमेट में जाना पड़ेगा, राइट? बच्चा बराबर है? Yes, sir. So you should go for approximation because 3 into 5, हाँ तो इधर कुछ तो मिस्टेक हो गया हमसे। तो 20 है तो एक्चुअली ये 15 होना चाहिए। So if it is 15, so it has, instead of 20 it is 15, so it gives more clarity. So anyway, if it is 20 also, the more nearest answer will be this one. But instead of this 20, it has to be 15. So if it is 15 here, obviously 9 upon 15, it is going to be 3 upon 5. So since it is 20 here, so obviously 3 upon 6 तक होएगा. In fact, I would say 7 तक भी जा सकता है because वो 20 है. 18, 20, 21, right? तो 3 upon 7 है. तो 3 upon 7 तो ऑप्शन नहीं है. तो इसका नियरेस्ट ऑप्शन obviously 3 upon 5. बच्चे, did you get that? बच्चे समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay, last one. So question number, we'll move towards, yes, 5th one. What is the resistance of bulb when draws a current of 0.25 from a 24 volt battery sources? ये तो simple है. Resistance will be equal to V upon I. Obviously voltage दिया है 24 and ये वैल्यू दिया है 0.25, 0.25. तो ऑब्वियसली 24, बचे 0.25 को 2 शिफ्ट किया तो 25 होगा, तो इधर ऊपर ऑब्वियसली 100 लेना पड़ेगा। तो 25 1 जा एंड 100 4 जा, तो इट इज 24 into 4, तो अल्टीमेटली 4 into 4 16 है, तो इट इज 96 ओम। सो 96 ओम मतलब ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। बट इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So we will move towards, you're done with the conductance and you're done with the resistance. So before getting into conductivity and resistivity, so we will first define ohmic and non-ohmic conductors. Define करेंगे ohmic conductors and non-ohmic conductors. बच्चा नाम से ही पता चलता है, ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। ओम्स लॉ को ओबे करना मतलब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम किया तो करंट कम होगा। जब ऐसा कुछ होगा सो डेफिनेटली उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। आई मीन कंडक्टर which obey
Ohm's law, conductor which obeys Ohm's law is called ohmic conductor. Ohmic conductor, right? And example ohmic conductor के लिए बच्चा most of the metals, right, they obey Ohm's law. मतलब एग्जाम्पल का तौर पर मैं लिख सकता हूं मेटल्स, राइट। अभी इसमें क्या होगा बच्चा, कैसे पता चलेगा आपको ओमिक है कि नॉन ओमिक है? तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वोल्टेज अगेंस्ट करंट या करंट अगेंस्ट वोल्टेज, ऑब्वियसली आपका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, ग्राफ लीनियर आएगा, राइट। सो सिंस ग्राफ लीनियर है, उसको हम लोग दे आर आल्सो कॉल्ड एज लीनियर कंडक्टर्स। एक तो लीनियर कंडक्टर्स बोलेंगे, नहीं तो लीनियर रेसिस्टर्स बोलेंगे, राइट। बच्चा इज इट क्लियर? मतलब सिंपल वर्ड्स में जो ओम्स लॉ को ओबे करता है उसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली नॉन ओमिक कंडक्टर कौन होगा बच्चा? कंडक्टर which do not obey Ohm's law is called non-ohmic conductor. Obviously example non-metals होगा, and to be very precise बच्चा semiconductors जो है ये भी नॉन ओमिक रहेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स बनाते हैं, लाइक डायोड्स बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं, राइट, या इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, राइट, ये भी नॉन ओमिक है। तो जब हम लोग नॉन मेटल्स का बात करेंगे, प्रेडिक्टिंग ग्राफ इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब कभी वो कर्व आएगा, कभी वो जिगजैग लाइन आएगा, सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। बट हम लोग सेमीकंडक्टर का ग्राफ डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब मैं सेमीकंडक्टर का बात करता हूं सेमीकंडक्टर का मैंने बात की, तो सेमीकंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल ऑब्वियसली सिलिकॉन है। अभी ये सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, तो बचता है ऑब्वियसली इट विल बी 4। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। टेट्रा मतलब 4 है, वैलेंट, राइट। तो ये टेट्रावैलेंट है, तो जब भी बॉन्डिंग करता है, बॉन्डिंग, व्हेन इट गोस फॉर बॉन्डिंग, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनाता है। एंड जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनता है उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ऑब्वियसली आपने आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के पढ़ा होगा, बट दिस कोवलेंट बॉन्ड it is produced due to the sharing of electrons. I mean the bond formed because of sharing of electrons will be called as covalent bond. अभी exactly हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छा मान लो ये सिलिकॉन है, ठीक है, तो इसका नेबरिंग में और 3-4 सिलिकॉन एटम होगा, राइट। अभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हर एक सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में we are going to have 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करेगा बच्चा, टू मेक इट स्टेबल स्टेट, आउटलेट बनाने के लिए वो इसका साथ शेयर करेगा, एक इसका साथ शेयर करेगा, एक इसका साथ शेयर करेगा, एंड एक इसका साथ शेयर करेगा। तो ये होगा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का इसका सिलिकॉन एटम। वैसे ही ये जो बाजू वाला इलेक्ट्रॉन है उनके पास भी ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इधर देगा, एक इधर देगा, एक इधर और एक इधर देगा, राइट। देगा मतलब शेयर करेगा, राइट। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, राइट। तो ऑब्वियसली इधर भी ऐसा ही होगा, इधर भी ऐसा होगा, इधर भी ऐसा होगा। सो इट इज लाइक हर एक इलेक्ट्रॉन है ना जो बच्चा फ्री नहीं है बॉन्डिंग में, तो आप देख सकते हैं कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन व्हिच इज फ्री। तो फ्री नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो सकता है,
एंड करंट नहीं फ्लो हो सकता है, तो ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज इंसुलेटर, इट विल एक्ट एज इंसुलेटर, राइट। अभी करंट कब फ्लो होगा? जब बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड कब ब्रेक होगा? ऑब्वियसली जब हम उससे करंट पास करेंगे या उसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो इनिशियल पार्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मतलब इनिशियल थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस, पहला करंट फ्लो नहीं हो सकता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा, राइट। सो आई मीन when you apply potential difference, इधर प्लस इधर माइनस डाला, राइट, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ऑब्वियसली दिस विल बी, इट विल बिकम फ्री। मतलब जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है तब तक करंट नहीं पास होता है। आई होप यू गेटिंग। इसका मतलब जब अभी इसका मैंने ग्राफ इनकेस बनाया, तो इसका मैंने ग्राफ बनाया वोल्टेज अगेंस्ट करंट, राइट। सो चलो मैं रिवर्स लेता हूं, इसके लिए ले क्योंकि रिवर्स लेना थोड़ा एक्सप्लेन इधर करने को इजी होगा। देखो बच्चों, अभी मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो करंट नहीं रहेगा। तो इट इज लाइक इनिशियली क्या होगा बच्चा, करंट इधर तक नहीं रहेगा, क्योंकि इधर सब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इतना एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यूज होगा। उसके बाद क्या होगा, सडनली क्या होगा, करंट बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ, करंट बढ़ते जाए। सो ऑब्वियसली कुछ तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद करंट फिर से क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितना बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो करंट बन सकता था वो बन चुका है। सो पहला करंट जीरो है, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट जीरो है, देन वोल्टेज का साथ करंट बढ़ रहा है, देन फिर से क्या हो गया बच्चे, करंट कांस्टेंट होगा। आई होप यू गेटिंग। तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है लीनियर तो नहीं दिख रहा है, नॉन लीनियर है, इसके लिए हम लोग उसको दे आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन लीनियर कंडक्टर या नॉन लीनियर रेसिस्टर। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सर वो वापस कांस्टेंट क्यों हो जाता है? देखो बच्चा, अभी 5 इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ है, ब्रेक होके फ्री हुआ है, तो उसके बाद तो करंट कांस्टेंट होना चाहिए ना, राइट। राइट बच्चा, यस। मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो है ऑब्वियसली इतना ही इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकता है। या हाँ। मान लो कि सेमीकंडक्टर में मैक्स टू मैक्स 100 इलेक्ट्रॉन्स बन सकता है फ्री, तो 100 बनने के बाद करंट क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट हो जाएगा ना, बाद में वोल्टेज तो ब्रेक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं मिलेगा, राइट। हाँ हाँ समझे। राइट। तो मतलब इन शॉर्ट वो ग्राफ लीनियर तो नहीं है, 101% नॉन लीनियर है, मतलब ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन कंप्लीट दिस। यस।
Sir, completed. What about others, बच्चा? Is it done? Yes, sir. Okay, No. fine. ठीक है. Fine. So we will move towards resistivity. आपने स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी पढ़ा होगा, तो उसको ही फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग. ऑब्वियसली इट इज ए पार्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड. ठीक है, देखो बच्चा, अभी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑब्वियसली मैं ऐसा ही आपको डिफाइन नहीं कर सकता, बट जब एक इक्वेशन मिलेगा डेफिनेटली मैं उसको डिफाइन अच्छे से कर सकता हूं. फॉर दैट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट हम लोग उसका इक्वेशन निकालेंगे, देन वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. बट नाम से इतना बोल सकता हूं, ये जो स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी है, इट डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. मैं फिर से बता रहा हूं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जब मेरे को कोई बताएगा, मैं 101% बताऊंगा कि वो कंडक्टर का रेसिस्टेंस के बारे में कुछ बताने वाला है, राइट? तो नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, एंड ऑफ कोर्स इसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते. इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी. ठीक है, अभी रेसिस्टेंस के बारे में वो बताने वाला है, तो मेरे को पता है रेसिस्टेंस जो है वो 4 चीजों के ऊपर डिपेंड रहेगा. आई मीन इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स. एक लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर, राइट? अभी ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर मटेरियल का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली हम लोग मटेरियल चेंज नहीं करेंगे. तो इफ आई डोंट चेंज द मटेरियल, ऑब्वियसली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम होगा, क्योंकि मैं मटेरियल को चेंज करने वाला नहीं हूं, राइट? तो इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर. तो अभी ये सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल रखना है, तो मैं टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखूंगा. तो इसका मतलब इट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर आल्सो, राइट? सो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. लेंथ and area of cross section, right? So इसका मतलब I can definitely put in this way: resistance of a conductor, the resistance of a conductor at a given temperature, इसका मतलब कंडक्टर फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया, डिपेंड्स ऑन, ऑब्वियसली फर्स्ट वन इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसको मैं लेता हूं L. देन इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर. इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हम लोग ने ले लिया है A. अभी ऑब्वियसली हर एक मटेरियल का लेंथ और एरिया सेम रखा तो रेसिस्टेंस तो सेम नहीं होता है. इसका मतलब उसका नेचर का ऊपर भी डिपेंड रहेगा. आई मीन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर. नेचर ऑफ कंडक्टर से भी बेटर नेचर ऑफ मटेरियल का नाम बोल सकता हूं, राइट? मतलब मैं M का बात कर रहा हूं, राइट? सो इसका मतलब ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा, एक लेंथ, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एट लास्ट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल और कंडक्टर. ओके, अभी जब हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, so by experiment, of course हम मतलब हम लोग तो नहीं, साइंटिस्ट लोग ने जब एक्सपेरिमेंट किया, then they found that ये जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, लेंथ कम हुआ तो रेसिस्टेंस भी कम होता है, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है.
तो इसका मतलब लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, राइट? एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑब्वियसली with keeping same length same area still we are getting different resistance for different conductor. इसका मतलब उसका नेचर का ऊपर भी डिपेंड रहेगा, राइट? So by experiment it is found that resistance is directly proportional to length of conductor and inversely proportional to area of cross section of conductor. Area of cross section of conductor. राइट? तो इसके हिसाब से ऑब्वियसली इक्वेशन तो बन ही जाएगा। तो रेसिस्टेंस मैंने आर लिया, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चे इधर तक क्लियर है? यस सर। तो दोनों को कंबाइन किया तो ऑब्वियसली हमको मिलेगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अभी आपको पता है ये इक्वेशन को हमको इक्वेट करना है, मैथमेटिकली मेरे को एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, राइट? तो मैं लेके आऊंगा कांस्टेंट को इक्वेट करना है, तो विल गेट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो ये इसको रो आर एच ओ ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, इट इज रो। सो यू गॉट अ फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस व्हिच इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अभी सबको पता है रो मैथमेटिकली तो कांस्टेंट है, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नो डाउट प्रोपोर्शनैलिटी, बट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू लिखा है मैंने, विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स या विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर, इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। इसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। आप उसको रेसिस्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलो या स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोलो, इट इज वन एंड द सेम। आप उसको रेसिस्टिविटी बोलो, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलो, इट इज वन एंड द सेम, राइट? सो नया टर्म है, सो डेफिनेटली इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो ए उधर एल नीचे, तो you'll have rho is equal to RA upon L। तो जो मैंने बोला आपको फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला मिल गया, राइट? तो फॉर्मूला मिलने के बाद क्या करना पड़ेगा बच्चा? नामकरण करना पड़ेगा, उसका एसआई यूनिट देना पड़ेगा। तो एसआई यूनिट रेसिस्टेंस को ऑब्वियसली आपने ओम सुना है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, अपॉन लेंथ मीटर है, तो एक मीटर कैंसल होके यू लेफ्ट विद ओम मीटर, राइट? You're left with ohm meter, right? Yes, sir. Everybody, हाँ। अभी इसको हम लोग को डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? देखो हम लोग मान लें कि एल और एरिया जो है वो यूनिटी मतलब लेंथ 1 मीटर है, राइट? एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है। आई मीन इफ लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, देन दोनों 1 है, मैंने डाल दिए इसमें, तो इसका मतलब हम लोग को रो का वैल्यू इधर डाल दिया। सपोज रो का वैल्यू मेरे को क्या मिलता है बच्चा? आर मिलता है, बराबर है? मतलब रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ही है किसका? एक कंडक्टर का जिसका लेंथ 1 मीटर है एंड ऑफ कोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। अच्छा इधर तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये रेफरेंस से ऑब्वियसली आगे जाके हम लोग डिफाइन करेंगे इसको, बट अप टू दिस मच आई होप इट इज वेरी क्लियर। So you can write it down. So once it is done, we will define resistivity.
Sir, completed. So everybody finished? No, sir. Yes. Okay, please finish it. So once it is done, let me know. Sir, completed. Okay, fine. So the definition part. Now, obviously, on the basis of this, we will define resistivity. See, resistivity is nothing but resistance. Obviously, the length should be 1, area should be 1, right? So I will define in this way. Resistivity is defined as resistance of a conductor having, of course, unit length has to be unity, and unit area of cross section, right? So length is 1, area is 1. Of course, very important at a given temperature, because if I change the temperature, definitely the resistance is not fixed, it will change. But everybody got the definition? Resistivity is defined as resistance of a conductor having unit length, having unit area of cross section at a given temperature. बच्चा definition समझ में आया सबको? Yes. बच्चा अभी इसको एक्चुअली क्या है वो समझते हैं. सुनो अभी, जब मैं बोलता हूं यूनिट लेंथ, राइट, जब मैं बोलता हूं यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो डोंट यू थिंक बच्चा एरिया इंटू लेंथ मेरे को वॉल्यूम देता है. तो वैसे ही मैं यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बात कर रहा हूं, तो मैं यूनिट वॉल्यूम का बात कर रहा हूं. यू एग्री विद दिस? Yes, sir. मतलब जब मैं यूनिट वॉल्यूम का बात कर रहा हूं, मतलब किसी सब्सटेंस का, मतलब सब्सटेंस इतना बड़ा है, इसका अंदर एक यूनिट वॉल्यूम का जितना भी रेसिस्टेंस है बच्चा, उसको ही हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं. आपको समझ में आ रहा है बच्चा? यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. बच्चा सुनो, यूनिट लेंथ है तो ऑब्वियसली यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको यूनिट वॉल्यूम लेता है, तो आप वॉल्यूम कंसीडर करो. सो यू कंसीडर ए वॉल्यूम ही, तो मैंने एक वॉल्यूम कंसीडर किया, ठीक है? सो दिस इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑब्वियसली क्यूबॉइड लिया है. बच्चे ये 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर. सो यू गॉट ए यूनिट वॉल्यूम. अभी इसका जो भी रेसिस्टेंस होगा, इसका, ये ब्लॉक का, राइट, ये क्यूब का, राइट, वही होगा रेसिस्टिविटी. आई होप यू गेटिंग. अच्छा, क्लियर है? यही होगा रेसिस्टिविटी, राइट. मतलब फॉर एग्जांपल अभी देखो बच्चा, मार्कर दिख रहा है आपको, राइट. बच्चे पूरा मार्कर करंट को कितना अपोज करता है? वो रेसिस्टेंस है. मतलब एज ए होल ये मार्कर कितना करंट को अपोज करता है? वो रेसिस्टेंस है. बट यही मार्कर का एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम लिया मैंने, यूनिट वॉल्यूम,
वो कितना करंट को अपोज करता है, वो होता है रेसिस्टिविटी। बच्चा समझ में आ रहा है? इज इट ओके? समझ में आ रहा है? यस सर। yes sir, मतलब एक ऐसा बोल सकता है, सपोज मेरे में करंट पास किया, सो इफ करंट इज पास थ्रू मी, मैं पूरा करंट को कितना अपोज करता हूं, मेरा रेसिस्टेंस है, राइट? अभी मान लो मैं किससे बना, आई एम मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्स, राइट? सेल का मैंने मान लिया कि वो क्यूब का जैसा है। सेल क्यूब तो नहीं रहता है, बट लेट अस अज्यूम दैट इट इज क्यूब। सो आई हैव मेड अप ऑफ मेनी क्यूब्स, राइट? अभी मेरा एक सेल का जो ऑपोजिशन है करंट को, वो होता है बच्चे रेसिस्टिविटी। समझ में आया? यस सर। yes yes मतलब मेरा बॉडी कितना करंट को अपोज करता है, वो रेसिस्टेंस है। बट मेरा बॉडी में एक सेल, राइट, जिसका शेप यूनिट वॉल्यूम जैसा है, तो वो कितना ओपोज करता है, वो होगा रेसिस्टिविटी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यस सर। ठीक है, चलो अभी बच्चा 2-3 पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, नोट के हिसाब से लिखता हूं मैं। बच्चा ये बताओ, ये जो रेसिस्टिविटी है, विल इट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट? बच्चा सोच के बताना है, ठीक है? ये जो रेसिस्टिविटी वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड रहेगा क्या? यस। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ता है, ऐसा कुछ सीन है? no नहीं है ना बच्चा? देखो, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ही है ना? बट हमको पता है रेसिस्टेंस वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड रहता ही नहीं है। जब रेसिस्टेंस डिपेंड नहीं रहता है, रेसिस्टिविटी ऑब्वियसली डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि ये लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है, राइट? सो रेसिस्टिविटी, बच्चा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज independent of voltage and current, but obviously current resistivity के ऊपर डिपेंड रहेगा, बट resistivity डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन बच्चा, सेकेंड पॉइंट, resistivity will it depend on length and area of cross section? length and area of cross section, यस। yes हाँ। बोल रहे हो ना? हाँ। बच्चा सुनो, मैंने दो ब्लॉक लिया, दो ब्लॉक, एक दोनों आयरन ब्लॉक है, एक का डायमेंशन कम है, एक का डायमेंशन बड़ा है, एक छोटा है आई मीन, और एक बड़ा है। बच्चा सुनो, अभी ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम से बनता है, राइट? हाँ। स्मॉल है तो हो सकता है 4 यूनिट वॉल्यूम है, अभी बड़ा है तो ऑब्वियसली यू कैन हैव मेनी नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम्स। आई होप यू गेटिंग। यस। अभी बच्चा इसका रेसिस्टेंस जितना भी है इसका, वही रेसिस्टेंस इसका भी होगा ना बच्चा? हाँ। ऐसा हुआ क्या, जब ये मटेरियल छोटा किया तो इसका रेसिस्टेंस कम हुआ, इसको बड़ा किया तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ गया? नहीं बच्चा, एक यूनिट वॉल्यूम का साइज है ना, वो हमेशा बड़ा होने दो या छोटा होने दो, उतना ही रहेगा। अभी इफ इट इज स्मॉल, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम्स कम है, नंबर कम है। बड़ा है तो इसमें नंबर ज्यादा है, बट यूनिट वॉल्यूम का साइज सेम रहेगा। बच्चा यू आर गेटिंग द पॉइंट? यस सर। बच्चा देखो सुनो, अभी चलो, मेरे को तो आप फिजिकली अच्छे से तो देखा नहीं है, सपोज मैं एकदम थिन है, ठीक है, मान लो मैं एकदम थिन है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चा? सेल का, मेरा सर का सेल का साइज कम है, उसके लिए मैं थिन बोलेंगे, या सर का बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स कम है उसके लिए थिन है बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? नंबर ऑफ सेल्स कम है। एग्जैक्टली, सेल का तो साइज उतना ही रहेगा ना। हाँ। अभी अभी मेरा एक फ्रेंड है, थोड़ा मोटा है, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा फ्रेंड का सेल का साइज बड़ा है, तो इसके लिए वो मोटा है, या नंबर ऑफ सेल्स उसमें ज्यादा है? नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, मतलब आप लेंथ और एरिया बढ़ाएंगे, यूनिट वॉल्यूम का साइज कैसे चेंज हो सकता है बच्चा? वो तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो यूनिट वॉल्यूम है, राइट? यस सर। बच्चे एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
तो मतलब आपका एरिया बड़ा, मतलब छोटा वॉल्यूम लिया, बड़ा वॉल्यूम लिया, यूनिट वॉल्यूम का सही इधर जितना है उतना ही इधर होगा. देयर इज नो चेंज. आई होप यू गेटिंग. सो इधर रेसिस्टेंस 1 ओम है तो इधर भी 1 ओम है. तो ऑब्वियसली आप मटेरियल को बड़ा करेंगे, रेसिस्टेंस बढ़ सकता है, बट रेसिस्टिविटी जितना है उतना ही रहेगा. तो ऑब्वियसली मैं और एक पॉइंट लिख रहा हूं, रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, independent of length and area of cross section. इसको हम लोग दोनों को मिला के डायमेंशन बोलते हैं. डायमेंशन, राइट? यस सर. अभी सवाल उठता है, जब ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, करंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर डिपेंड नहीं रहता, तो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? बच्चा कैन यू गेस किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? बच्चा बताओ. रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, जल्दी बोलो बच्चा. एकदम इजी है, सब कुछ हो गया, अभी एंड में आ गए हम लोग. तो बताइए किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? बच्चा सुनो, वॉल्यूम. बोलो बोलो. यूनिट वॉल्यूम. नहीं, यूनिट वॉल्यूम का साइज तो हमेशा सेम ही रहेगा ना बच्चा. तो यूनिट वॉल्यूम तो सेम ही रहे. अभी मेरे को ये बताओ, सपोज मैंने आयरन का यूनिट वॉल्यूम लिया, कॉपर का यूनिट वॉल्यूम लिया, तो दोनों का रेसिस्टेंस सेम रहेगा कि बच्चा अलग रहेगा? अलग रहेगा. अलग रहेगा. इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल. यू एग्री विद मी? यस सर. अच्छा, सेकंड वन. बच्चा सुनो, सपोज मैंने यूनिट वॉल्यूम आयरन का लिया, Temperature. हाँ, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली एटम वाइब्रेशन ज्यादा करेगा, कोलिजन ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट? तो इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. एंड याद करो, हम लोग को पता था कि इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, इसके लिए इन दोनों को हम लोग ने कांस्टेंट रखा था. बराबर है ना? हाँ. हम लोग को तकलीफ नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग मटेरियल और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था. बट ये जो भी नोट में लिखा है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मतलब फॉर ए गिवन मटेरियल एट गिवन टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा. फॉर ए गिवन मटेरियल एट गिवन टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ये आपको याद रखना है. आप लेंथ बढ़ाओ कम करो, एरिया बढ़ाओ कम करो, irrespective of that, resistivity will remain constant. Is it clear? यस सर. Fine. So you can complete this. So we'll move towards conductivity there. सर कंप्लीट. और कंप्लीट. Fine. सबको हो गया बच्चा? Everybody finished? यस सर. Okay.
फाइन, इज इट ऑडिबल? आवाज आ रहा है? Yes, sir. ठीक, फाइन देन। सो नाउ बच्चा सुनो, एक मटेरियल लिया, वो मटेरियल करंट को पूरा मटेरियल करंट को कितना अपोज करता है, अल्टीमेटली उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, राइट? एंड वही मटेरियल का एक यूनिट वॉल्यूम कितना करंट को अपोज करता है, उसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। बच्चा पॉइंट क्लियर है? यस सर। अभी वही मटेरियल, पूरा मटेरियल करंट को कितना सपोर्ट करता है, उसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। बराबर है? बराबर है बच्चा? यस। अभी बताओ वही मटेरियल का एक यूनिट वॉल्यूम करंट को कितना सपोर्ट करता है, यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोलेंगे बच्चा? कंडक्टिविटी। एग्जैक्टली। सो ऑब्वियसली इट विल बी कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, राइट? तो नेक्स्ट वन obviously it is going to be conductivity. So बच्चा रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस का क्या रिलेशन है बच्चा? रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस का अभी तो लिखा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो सिमिलरली कंडक्टिविटी, इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा। सो ऑब्वियसली इट इज सिग्मा। किधर लिखूं? सिग्मा, जैसा वो रो है ये सिग्मा है, ठीक है? सो कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेसिस्टिविटी कम है, या कंडक्टिविटी कम है तो रेसिस्टिविटी ज्यादा है। तो आई कैन राइट कंडक्टिविटी इज रिसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो ऑब्वियसली हम लोग को इससे ही फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट? Yes. तो आई कैन राइट सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, एंड हमको पता है रो क्या होता है बच्चा? रो आर ए अपॉन एल होता है। तो इसके हिसाब से रो को मैंने आर ए अपॉन एल लिखा तो एल ऊपर चला जाएगा, तो रो सिग्मा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए, राइट? Yes, बट sir. हम लोग को ये भी पता है कि 1 अपॉन आर के होता है, के फॉर कंडक्टेंस है, तो 1 अपॉन आर इधर है, तो सिग्मा के एल अपॉन ए होगा। ये होगा फॉर्मूला ऑब्वियसली कंडक्टिविटी का, कंडक्टेंस का टर्म्स है, बिकॉज सिग्मा कंडक्टिविटी है एंड के कंडक्टेंस है। इज इट क्लियर बच्चा? Yes, sir. फाइन। पहले ऐसा यूनिट देखेंगे, के का यूनिट मो है, लेंथ मीटर है, एरिया मीटर स्क्वायर है, तो नीचे का एक मीटर कैंसिल होके the SI unit for conductivity obviously you will get it as mho per meter. mho को सीमेंस भी बोलते हैं, तो आप सीमेंस पर मीटर भी लिख सकते हैं। So it is up to you. It is mho per meter, otherwise it is सीमेंस per meter. बच्चा समझा? Yes. चलो अभी डिफाइन कैसा करेंगे बताइए। L और A का वैल्यू मैंने 1 लिया, राइट? If L is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter square, then you know that the value of sigma will be K होगा, right? मतलब कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही रहेगा, बट जिसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए। बराबर है ना? Yes, sir. तो मैं वर्ड्स पुट कर रहा हूं बच्चा, ध्यान दो। कंडक्टिविटी is defined as conductance of a conductor having unit length and unit area of cross section at a given temperature. At a given temperature. अच्छा बराबर है? Yes, sir. तो इधर भी आपको समझ में आया होगा कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी कंडक्टिविटी रहेगा, कंडक्टेंस रहेगा, यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करो, उसमें जितना भी कंडक्टेंस रहेगा ऑब्वियसली वही होगा सिग्मा। यस और नो बच्चा? Yes. फाइन। नोट बच्चे, विल इट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट?
Conductivity, will it depend on voltage and current, बच्चा? Obviously not, because जब resistivity depend नहीं रहता है, तो voltage, conductivity कैसा depend रहेगा, right? So will it depend on length and area of cross section? No. No. Will it depend on material and temperature? Yes. Yes. So conductivity and resistivity materialistic property है, इसका मतलब वो depend रहेगा material और temperature का ऊपर. Is it clear? Yes, sir. Fine. Complete करो बच्चे इसको. Done, sir. Okay. So everybody finished? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It means resistivity and conductivity is very clear, right? Yes, sir. Fine. So, bacha, next time, obviously, we will deal with a concept called drift velocity. Means, as you know, when potential difference is not applied, the electrons will be moving in random direction. So, when they move in random direction, obviously, the net velocity of the electrons will be zero. So, when potential difference is applied, so they move in particular direction. They move in one direction. But when they move in one direction, definitely they will move with a certain velocity, and that velocity is called drift velocity. So in next lecture, we will define drift velocity and we will derive expression for drift velocity, right? So, and that will be in terms of current. I mean, we'll derive the expression for drift velocity in terms of current. I hope up to this much it is very clear, right? Yes, sir. So we will continue next time. Fine then. So we'll continue next time. We will stop now.